Hello, dear students. Greetings from Dr. Sabiq Ali. In the last video, we have seen what is internal sum and what is external direct sum. So, in short, internal direct sum is a concept related to subspaces of the given vector space. That means if u1, u2, un are subspaces of vector space V, then that V is said to be internal direct sum of u1, u2 up to un if every element of that vector space V can be written as uniquely in terms of sum of elements from the subspaces. And एक्सटर्नल डायरेक्ट सम में वो सम में नहीं लिखा जाता है, वो ट्यूपल में लिखा जाता है. जस्ट राइट द ब्रैकेट, फर्स्ट कंपोनेंट comma second component comma up to n component if we are considering n vector spaces to create external direct sum. Got it? हेलो, पक्का ये हो गया? अब हम क्या करते हैं, एक फॉर्मल डेफिनेशन देखते हैं इंटरनल डायरेक्ट सम इसकी. तो अभी बिना वक्त जाया किए हम फास्टली लिखते हैं डेफिनेशन ऑफ इंटरनल डायरेक्ट सम. So dear students, ये है definition of internal direct sum. So let us read this definition. Let V be a vector space over the field F. So it is given original vector space. And U1, U2, Un be subspaces of that vector space V. So to define internal direct sum, we need subspaces of that vector space. तो इसलिए ये n subspaces लिए. अब ये original vector space V is said to be internal direct sum of these subspaces U1, U2, Un if, this is very important, if every element of capital V, it is denoted by small v, this element, every element of the vector space V can be written in one and only one. That is a very strict and important condition imposed in this definition. So one and only one way, as V is equal to one element from U1 denoted by small u1 plus second element is coming from u2, second subspace, plus third element is coming from third subspace, and continuing in this way, the last element should be coming from un and it is denoted by small un. So इसका मतलब ये होता है कि इंटरनल डायरेक्ट सम में वेक्टर स्पेस V का हर एलिमेंट ऐसे लिखा जाना चाहिए. तो फिर ये वन एंड ओनली वन क्या है, उसको भी समझना होगा. इट्स मीनिंग इज दिस कैन बी रिटन इन अ यूनिक वे. यूनिक वे का मतलब ये होता है, मैं आपको समझा देता हूं. सपोज दैट यू वांट टू राइट अ नंबर 12 in terms of smaller number and its addition. So how I can write? So it is 1 plus 3 plus 4 plus 2 plus 2.
otherwise 0, like this. ये 1 plus 3 4, 4 plus 4 8 is 10, and we will write 10. तो 10 नंबर को हमने एक बार ऐसा लिखा यूजिंग द हेल्प ऑफ 1 3 4 2 एंड 0, देन वही 10 आप दूसरे फॉर्मेट में भी लिख सकते हो, जैसे कि 2 plus 3 plus 5 plus 0, ये भी 10 है, ये भी 10 है। तो ये जो एलिमेंट्स आपने लिए ये यहां के एलिमेंट से अलग है, तो सेम नंबर आप दो अलग अलग सेट से प्रेजेंट नहीं कर सकते यहां पर इंटरनल डायरेक्शन। तो एक बार आपने u1 u2 un को ऐड करके जब v बनाया तो वो v उस u1 u2 u1 un के अलावा दूसरे किसी भी एलिमेंट के एडिशन से नहीं बनना चाहिए। दैट इज द मीनिंग ऑफ यूनिकनेस, और यू कैन से वन एंड ओनली वन वे। तो ये जो सिलेक्शन होता है v बनाने के लिए, दैट मस्ट बी यूनिक। That is the very important condition in this definition. ये I hope that ये definition को आपने समझ लिया होगा। And after that हमें सबसे बड़ा important आज काम ये करना है कि we have to prove one theorem that will give isomorphism between internal direction and external direction of the subspaces. So, first of all, we will write the statement of the theorem and then we are trying to prove that theorem. तो थोड़ा सा फास्ट लिखते हैं। Okay, come back. Dear students, I have written statement of the theorem. What is that statement? Just read. If V is the internal, actually V is a vector space over the field F. Okay, and that vector space is the internal direct sum of its subspaces denoted by U1, U2 up to UN. So this is the information they have provided. Then what we want to prove? Then prove that the same vector space who is internal direct sum is isomorphic to external direct sum of the same subspaces. अब आप कहेंगे कि सर आपने तो कहा था कि एक्सटर्नल डायरेक्ट सम के लिए सबस्पेसेस नहीं कुछ भी चलता है। बिल्कुल सही कहा था मैंने, लेकिन दूसरे वेक्टर स्पेस का एक्सटर्नल ले सकते हो आप, तो किसी भी वेक्टर स्पेस का ले सकते हो, है ना। तो यहां पर इन सबस्पेसेस अगर है तो वो खुद भी तो इंडिविजुअल वेक्टर स्पेस होते हैं, है ना। तो एक्सटर्नल डायरेक्ट सम दोनों वे से काम करता है। उसको जरूरत होती है सिर्फ वेक्टर स्पेसेस की जिसका वो एक्सटर्नल डायरेक्ट सम करेगा, फिर चाहे वो V के सबस्पेसेस रहे या चाहे उस V के बाहर के रहे। लेकिन इंटरनल डायरेक्ट सम में आपको सबस्पेसेस ही चाहिए, ठीक है। तो आपको यहां पर आइसोमॉर्फिज्म बिटवीन दीज टू सम इंटरनल एंड एक्सटर्नल प्रूव करना है। So what is the procedure to prove that isomorphism? So here we want to show that isomorphism between internal direct sum and external direct sum. That's why the procedure is, first of all, you define, hello, getting my point? What we want to show? We want to show that isomorphism between internal direct sum and external direct sum. So that's why we are defining a mapping function from internal direct sum to
और इनटू एक्सटर्नल डायरेक्शन। दैट मीन्स हम ऐसा फंक्शन डिफाइन करेंगे जिसका डोमेन जो है वो इंटरनल डायरेक्शन रहेगा और उस फंक्शन का कोडोमेन जो है वो एक्सटर्नल डायरेक्शन रहेगा। उसको हम डिफाइन करेंगे। फिर डिफाइन करने के बाद अब आप कहेंगे कि सर ये तो आपने डिफाइन किया, वेदर इट इज मीनिंगफुल वट एवर यू हैव डिफाइन, कि जो भी फंक्शन मैं डिफाइन करूंगा कि ये फंक्शन ऐसे डिफाइन किया मैंने कुछ कि फंक्शन में डोमेन का एलिमेंट जाएगा तो आंसर ये आएगा, कुछ किया मैंने, बट व्हाट इज द ऑथेंटिसिटी? आप तो कुछ भी करोगे, ये जो आपने डिफाइन किया या करोगे वो वेल डिफाइन होना चाहिए। तो आपको सबसे पहले वो मैपिंग जिसको आप आइसोमॉर्फिज्म प्रूव करना चाहते हो वो वेल डिफाइन होना बहुत जरूरी। तो आप जब भी मैपिंग डिफाइन करोगे तो पहला हमारा क्लेम रहेगा डिफाइन मैपिंग, ठीक है, डिफाइन फंक्शन या मैपिंग। सेकंड जो रहेगा वो रहेगा कि टू शो दैट दैट मैपिंग जो भी है दैट फंक्शन इज वेल डिफाइंड, वरना तो आप कुछ भी डिफाइन करके कुछ भी आंसर लाके बताओगे। मैथमेटिकली वो वेल डिफाइंड होनी चाहिए जो भी मैपिंग आप डिफाइन करोगे। उसके बाद आइसोमॉर्फिज्म प्रूव करना है तो आपको होमोमॉर्फिज्म प्रूव करना होगा, वो मैपिंग होमोमॉर्फिज्म है ये भी प्रूव करके बताना होगा। आफ्टर दैट होमोमॉर्फिज्म आइसोमॉर्फिज्म कब बनता है? जब वो 1 1 एंड ऑन 2 रहेगा, तो 1 1 भी प्रूव करना होगा एंड वो मैपिंग ऑन 2 भी है ये प्रूव करना। इतनी सारी चीजें प्रूव करने के बाद मैं बोल सकता हूं कि वो डोमेन में जो इंटरनल डायरेक्ट सम है वो आइसोमॉर्फिक टू डायरेक्ट सम दैट इज एक्सटर्नल डायरेक्ट सम इन द कोडोमेन, ठीक है। तो कोई भी मैपिंग जैसे कि टी हमने मैपिंग डिफाइन किया समझो ए टू बी लाइक दैट, तो ये ए जो है वो रहेगा इंटरनल डायरेक्ट सम, इंटरनल डायरेक्ट सम, और ये जो रहेगा वो एक्सटर्नल डायरेक्ट सम। अब कैसे डिफाइन करेंगे मैं बता दूंगा आपको, इट्स वेरी सिंपल एंड मतलब बहुत ही एलिमेंट्री आइडियाज पर ये डिफाइन होता है, लेकिन डिफाइन करने के बाद आपको ये पांचों चीजों को प्रूव करना पड़ेगा तब जाके हमारा ये थ्योरम पूरा हो जाए, कंप्लीट हो जाए। गेटिंग पॉइंट? ओके, तो चलिए फिर हम क्या करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर, अभी ये स्टेटमेंट को आप नोट करके लिख लीजिए। अब हम क्या करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर लिख देते हैं कि व्हाट इज इंटरनल डायरेक्ट सम एंड ऑल द थिंग्स। सो हियर u1 plus u2 plus up to un is internal direction, ठीक है। इसका मीनिंग क्या होता है, डेफिनेशन क्या होता है आपको पता है। और एक्सटर्नल डायरेक्ट सम का नोटेशन कुछ हम ऐसा करेंगे, u1 सम है इसलिए प्लस लिखेंगे बट दैट इज एक्सटर्नल, तो आपके बुक में जो नोटेशन है उसको ऐसा सर्कल किया है, तो plus under the circle that indicates it is a external direction, u1 plus u2 like this, u3 like this, continuing in this way, and last is un is what? External direct sum, direct sum. For the sake of simplicity, I can denote this as a capital A and this is a capital B. तो बार बार कौन लिखेगा ना इतना बड़ा, तो इसको A और इसको B बोल देते हैं। फाइन, नाउ डिफाइन, ओके, डिफाइन T, T इज अ फंक्शन। सर आप तो फंक्शन को हमेशा F लेते थे, नाम में क्या रखा है? यू कैन डिनोट फंक्शन बाय एनी लेटर। In your book, the most frequently used letter is T. So therefore, I am taking T. So T is a mapping from A
to B. Okay. By. How you will define this? This is very important. So I am writing this as a T. T के अंदर, उस फंक्शन के अंदर एलिमेंट कहां से आएगा? वो तो डोमेन से आएगा. डोमेन कौन है? ए कौन है? हेलो, ए कौन है बताइए? ए कौन है? इंटरनल डायरेक्ट सम. तो उसके एलिमेंट कैसे होते हैं? उसके एलिमेंट होते हैं u1 प्लस u2, है ना? ये देखा है हमने डेफिनेशन में, un. और इसका जो इमेज आएगा, मतलब ये फंक्शन जो आंसर देगा, वो जो भी आंसर रहेगा वो b का मेंबर होना चाहिए. एंड टेल मी व्हाट इज b? b इज अ एक्सटर्नल डायरेक्ट सम. और एक्सटर्नल डायरेक्ट सम हम ट्यूपल में लिखते हैं. तो हम क्या करेंगे, ये जो फर्स्ट टर्म है ना, उसको यहाँ का फर्स्ट कंपोनेंट लेते हैं, कॉमा सेकंड टर्म को सेकंड कंपोनेंट लेते हैं, थर्ड टर्म को थर्ड, और आखिरी वाले को लाइक. हो गया डेफिनेशन टी का. लेकिन वह मतलब वी वांट टू शो दैट इट इज वेल डिफाइंड. बट देखिए, ये जो इंटरनल डायरेक्ट सम से आपने लिया था, ये यूनिक होता है. यूनिक, वन एंड ओनली वन वे. इसलिए ये भी आंसर यूनिक रहेगा. और जब कोई फंक्शन में एलिमेंट जाता है और उसका आंसर जब यूनिक आता है, तो वो फंक्शन ऑलरेडी वेल डिफाइन होता है. हाँ सर, नहीं, ऐसा नहीं चलेगा. वी आर नॉट लॉजिकली प्रूविंग दिस. वी वांट टू शो दैट, prove it, how it is well defined. Okay, not an issue. We will prove it. How we will prove it? Now, first, claim number 1. First of all, I am writing here claim number 1. To prove that T is well defined. Okay. Now, what is the mathematical tool so that I can say this mapping is well defined? So, keep remember always, to show that any mapping is well defined, you take any two elements, let x and y, any two elements from the domain of that mapping, मतलब a से लेना, ठीक है? उसको आप इक्वल कंसीडर करो. लेकिन आपने वो a से लिया है. a क्या है बताइए? डायरेक्ट सम है. तो आप x इज इक्वल टू क्या लिखोगे? u1 प्लस u2 प्लस un. ये इसका फॉर्मेट रहेगा, बिकॉज a इज अ इंटरनल डायरेक्ट सम एंड y कैन बी रिटर्न एज u1 डैश प्लस u2 डैश, सम अदर एलिमेंट्स, एंड दिस इज un डैश. ठीक है? अब आपको क्या करना है, टू वेल डिफाइन प्रूव करने के लिए, ये जो दो एलिमेंट आपने डोमेन से लिए थे, उसको आपने इक्वल कंसीडर करना. कंसीडर दीज एलिमेंट्स आर इक्वल. ठीक है? अब एलिमेंट को इक्वल जब कंसीडर करोगे, तो अब आपको प्रूव करना है कि व्हेन दीज टू एलिमेंट्स आर इक्वल, देन देयर इमेजेस आर आल्सो इक्वल अंडर द फंक्शन t. So that now to show that ये शो करने के बाद आपका वेल डिफाइन हो जाएगा. टू शो दैट t ऑफ x इज इक्वल टू t ऑफ y. ये हमारा टारगेट रहेगा यूजिंग दिस. ठीक है? तो अब हम इसको कंसीडर x इज इक्वल टू y करेंगे. इट्स implies what is x? x is u1 plus u2 plus up to un. And what is y? Y is u1 dash plus u2 dash plus up to un dash. Fine. Now transfer all the right side terms into left hand side. So what happened? I'll get u1, okay, u1 minus u1 dash plus u2 minus u2 dash plus up to un minus un dash is equal to what? 0. It's a 0. All right.
Now I'm giving these terms inside the brackets. ये हमारे लिए वो डिफाइन करने के लिए ज्यादा सिंपल होगा. Now operate that function t on both sides. So I'm operating this t on both sides like this. This is t. Yeah. Okay. Now what is the next? How you can write this as a देखिए t जो क्या करता है उसको n ट्यूपल में कन्वर्ट करता है. मतलब ये जो एडिशन है फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म और nth टर्म का वो उसका n ट्यूपल बनाएगा. तो यहां पर बनेगा फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ दैट n ट्यूपल इज u1 माइनस, राइट, u1 माइनस u1 dash comma u2 minus u2 dash up to the last element or component of the n tuple is un minus un dash. This is the n tuple, and that 0 can be written as 0 plus 0 plus 0 plus n times, and therefore it can be written as 0 0 up to 0. This is the image of that 0 element in B. Okay, so this is n tuple in the left hand side, this is also n tuple in the right hand side. तो ये दोनों इक्वल है, मतलब corresponding components must be what? Getting my point? So instead of doing that, I'm just writing what u1 u2 up to un minus u1 dash u2 dash. ये b जो है ना, b एक्सटर्नल डायरेक्ट सम, उसमें एलिमेंट्स n ट्यूपल होते हैं. वो n ट्यूपल का एडिशन सब्सट्रैक्शन का ये डेफिनेशन है कि अब दो n ट्यूपल को आप ऐड करना चाहते हो तो आंसर n ट्यूपल आएगा, करस्पॉन्डिंग कंपोनेंट का एडिशन हो जाएगा. तो यहाँ सब्सट्रैक्शन है तो हमने उसको अलग कर दिया ट्यूपल्स में. ठीक है, तो ये हो गया un डैश इज इक्वल टू 0 0 0, इधर लिख देते हैं. ठीक है, now this is what you know, this is nothing but t of x minus this is nothing but t of y. देखिए आपका x तो ऐसा था ना, तो t of x by this definition तो यही आएगा, तो इसलिए हम t x लिखते हैं और इधर लिखेंगे हम t of 0, that is what you may write 0, that is the 0 element in the B. तो n ट्यूपल में भी लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है. But that 0 indicate not single 0, that 0 indicates 0 element in the B, that is n tuple of zeros. Okay, so therefore t of x is equal to t of y. Transfer this term to right hand side. So you have started from x equal to y and you have reached at t of x is equal to t of y. It means that the function which you have defined, whose name is t, is what? Well defined. Therefore, t is well defined. Now remember, please, whatever the steps you have done here, if you go reversely, that means you consider t of x is equal to ty, then this step, and go back, and stop here, x equal to y. So the same terms, when you go reverse, then that will be the proof of 1 1 function. तो आगे हमको 1 1 भी प्रूव करना है, तो यही स्टेप्स होंगे, बस रिवर्स जाएंगे, तो इसलिए इसको आपको याद रखना है. तो ये हो गया वेल डिफाइंड. ओके, नाउ इन द नेक्स्ट स्लाइड वी विल सी homomorphism. That's very important. Now claim number 2 is to show that this t, this mapping, show that mapping t is homomorphism. Actually, in the vector spaces, to show the homomorphism, we have to prove two conditions.
एक एडिशन की कंडीशन, टी ऑफ u1 प्लस u2 इज इक्वल टू, या टी ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल टू टी ऑफ x प्लस टी ऑफ वाई, एंड सेकंड इज टी ऑफ अल्फा x इज इक्वल टू अल्फा टाइम्स टी एक्स। तो मैं ये दोनों को अलग अलग न करते हुए एक ही कंडीशन में उसको मर्ज कर देता हूं, दैट इज टू शो दैट अल्फा x प्लस बीटा y इज इक्वल टू alpha of tx plus beta of ty. If you will prove this, then where x and y are from the domain, domain means a means integral direct sum, and alpha beta are the scalars, means they are the members of field. Now it's very simple, just look at here, it's very simple. So I'm writing this here x is a member of A, that means x can be written as u1 plus u2 plus up to un, and y can be written as u1 dash plus u2 dash plus un dash. So now I'm considering what? I'm considering LHS, left hand side, that is t of alpha x plus beta 1. Now it is equal to t of, okay, अल्फा x, दैट मीन्स अल्फा x को मल्टीप्लाई होगा, x इक्वल इसके है तो अल्फा ये सारे टर्म्स को मल्टीप्लाई होगा, मतलब अल्फा u1 प्लस अल्फा u2 प्लस अल्फा un प्लस, अब बीटा y को मल्टीप्लाई होगा, मतलब बीटा u1 डैश प्लस बीटा u2 डैश, ऐसा करके लास्ट में आएगा बीटा un डैश। ठीक है, समझ में आया? हेलो डियर स्टूडेंट्स, इधर ध्यान दीजिए, ये बस एक्स वाई के जो भी वैल्यूज थे वो हमने पुटअप किए। अब t क्या करता है? t क्या करता है, सम को जो है वो n ट्यूपल में कन्वर्ट करता है, लेकिन अब यहाँ ये n और n 2n हो गए, 2n नहीं चलेगा, है ना, तो इसलिए हम क्या करते हैं, ये टर्म और ये टर्म को एक साथ लिखते हैं, तो दैट कैन बी रिटन एज t ऑफ, your first term will become alpha u1 plus beta u1 dash, second term should be alpha u2 plus beta u2 dash, and continuing in this way आपको मिलेगा alpha un plus beta un dash, तो ये n टर्म्स का एडिशन हो जाएगा, तो t आपको n ट्यूपल देगा। अब n ट्यूपल कैसे देगा? सो इट्स वेरी सिंपल, ये ब्रैकेट निकालिए, आपका फर्स्ट कंपोनेंट होगा ये फर्स्ट टर्म, दैट इज अल्फा u1 प्लस बीटा u1 डैश, कॉमा सेकंड कंपोनेंट होगा सम की सेकंड टर्म, अल्फा u2 प्लस बीटा u2 डैश, and in this fashion the last component should be alpha un plus beta un dash. Fine, it's fine. Okay, now this is n tuple, and we know that the rule of how to add two n tuples, how to scalar multiply n tuple. So according to that rule of n tuples, we can separate these n tuples. So alpha u1, alpha u2, alpha un means all the first terms of the components make one n tuple plus all the second terms of each component using that make the second n tuple, that is beta u1 dash plus beta u2 dash, and sorry, not plus, it is comma, beta un dash. Now you may take alpha as a common from this n tuple, so alpha, this is u1, u2 up to un. Here you may take beta as a common, तो यहाँ बचेगा u1 dash, u2 dash and un dash. Fine. But you know that this is the element in B. B is the set of all images of A under T. तो इसलिए ये जो अल्फा है, इसके बाद ये जो है वो x का इमेज है, मतलब x अगर ऐसा है तो व्हाट शुड बी द tx. tx is n tuple u1, u2, comma un. So that's why this is
what is this? This is t of x and beta, this is t of y. तो शुरू हमने आपसे यहाँ से किया था एंड खत्म आपने यहाँ पे किया, and therefore t is a homomorph. Very nice. Homomorph. Now we are going to prove our third target. Now what is that third target? To show that it is 1 1. Claim number 3, to show that T is 1 1 mapping. To show that T is 1 1 mapping. और मैंने पहले ही बोल दिया था कि 1 1 मैपिंग मतलब वेल डिफाइंड जो आपने किया था उसका उल्टा करना है। तो मैं आपको बता देता हूं। तो 1 1 मैपिंग के लिए आपको क्या करना होगा, लेट 2 एलिमेंट लीजिए डोमेन से, और आपने ये 2 एलिमेंट लिए डोमेन से जो कि इंटरनल डायरेक्ट सम है, तो आप उसको ऐसा लिखोगे फॉर सम u1 u2 un, and the y can be written as u1 dash plus u2 dash plus un dash, like this. And therefore you write also like this, t of x is what? T of x is n tuple u1 u2 un, तो पहले ही लिख देते, और t of y का आंसर आएगा n tuple of these terms u1 dash u2 dash and un dash. फाइन। अब आपको करना क्या है, suppose or consider, suppose that t of x, the images of x and y are equal. ये पहले सपोज करना। उधर हमने वेल डिफाइंड में एलिमेंट्स को इक्वल सपोज किया था और फिर प्रूव किया था tx इक्वल टू ty। यहाँ उल्टा करना है, रिवर्स करना है। तो पहले सपोज करना है t of x इज इक्वल टू t of y, एंड आपको फिर प्रूव करना है x इक्वल टू y। तो क्लेम यहाँ पर रहेगा आपका क्लेम टू शो दैट 1 1 के लिए x इज इक्वल टू y। तो शुरू करते हैं tx इक्वल टू ty से। You know that tx is n tuple u1 u2 up to un equal to the value of ty is again n tuple u1 dash u2 dash and un dash. फाइन, यहाँ तक ओके है, राइट। नाउ इसको ये n tuple को हम लेफ्ट में लाते हैं। दैट इज द, वी कैन डू दिस बिकॉज दीज आर द मेंबर्स ऑफ B. B इज द एक्सटर्नल डायरेक्शन। वो एक्सटर्नल डायरेक्शन भी खुद वेक्टर स्पेस होता है, तो वेक्टर स्पेस के जितने 9 कंडीशंस है वो सब इंजॉय करेगा ये, तो n tuple इंजॉय करेगा, इसलिए हम उसको इधर ला सकते हैं। जब ये इधर आएगा तो ये लेफ्ट वाला n tuple माइनस ये हो जाएगा। तो मैं थोड़ा डायरेक्ट लिखता हूं, तो n tuple आएगा u1 माइनस u1 डैश कॉमा u2 माइनस u2 डैश एंड लास्ट में आएगा un माइनस un डैश, एंड इधर बचेगा n tuple 0 वाला 0 0 0, बट आप उसको डिनोट कर सकते हो 0 एलिमेंट से, दैट इज डिनोटेड बाय 0। ठीक है, ये हमने लिखा। नाउ देखिए, सोचिए कि हमको x इक्वल टू वाई प्रूव करना है। x मतलब ये है, ये होता है ना, u1 प्लस u2 ला के बताना है। तो हाउ वी कैन प्रूव दिस? अब ये कैसे कैसे प्रूव हो जाएगा, कुछ आइडिया है? इट्स वेरी सिंपल, व्हाट वी कैन डू। तो इसको अभी हम क्या करते हैं कि ये जो है वो n tuple है, मतलब वो किसी एलिमेंट का इमेज होगा अंडर T। तो ये लिखते हैं हम T ऑफ u1 माइनस u1 डैश प्लस, है ना, ये इंटरनल डायरेक्शन जो डोमेन का एलिमेंट होता है वो T में जाकर ये आंसर देगा। तो इसको हम प्री इमेज भी बोल सकते हैं। तो ये हम लिखेंगे u2 माइनस u2 डैश continuing in this way un minus un dash and equal to what? 0। तो यहां तक आ गए हम। अब T ऑलरेडी हमने प्रूव करके बताया है कि T इज अ होमोमॉर्फिज्म, और होमोमॉर्फिज्म की एक प्रॉपर्टी होती है कि होमोमॉर्फिज्म में जो एलिमेंट जाता है उसका आंसर 0 तभी आता है आइडेंटिटी, जब अंदर का एलिमेंट आइडेंटिटी होगा। So T of some element is identity, that means
अंदर का एलिमेंट भी क्या होगा, आइडेंटिटी। देयरफॉर u1 माइनस u1 डैश प्लस u2 माइनस u2 डैश, this is un minus un dash is identity element in domain. ये identity in codomain, ये identity in domain, because homomorphism always mapping identity from the domain into identity in codomain। ठीक है, तो ये ऐसे लिखा। अब हमारा काम हो गया। अब हम क्या करेंगे, ये u1 प्लस u2 प्लस ये un को एक ब्रैकेट में डालेंगे और दूसरे जो डैश वाले टर्म्स है उसमें से माइनस कॉमन निकालकर इसको यहाँ पर लिख देंगे इक्वल टू 0। अब ये जो ब्रैकेट है वो राइट साइड में जाएगा तो आपको मिलेगा u1 प्लस u2 प्लस प्लस un इज इक्वल टू u1 डैश u2 डैश एंड un डैश। And what is this? See, u1 plus u2 plus un is nothing but x, and this is equal to what? Y. तो आपने ये प्रूव किया कि therefore t is 1-1 function or 1-1 mapping. So simple, हाँ? हो गया। अब आखिरी क्राइटेरिया बचा है, दैट इज ऑनटू प्रूव करने के लिए आपको क्या करना होता है, ऑनटू के लिए आपको एक एलिमेंट जो है वो कोडोमेन से लेना पड़ता है। फर्स्ट टेक एलिमेंट फ्रॉम द कोडोमेन। आपका कोडोमेन है बी मतलब एक्सटर्नल डायरेक्ट। हाँ, तो अब आपको ऑनटू प्रूव करना है तो आपको एक एलिमेंट लेना होगा कोडोमेन से। तो लेट कोडोमेन इज योर एक्सटर्नल डायरेक्शन। So you can write element like this in terms of n-tuple. This is the element from the codomain. That means it is a member of external direction, right? So अब आपको गारंटी देना होगा कि उधर डोमेन में A में, कैपिटल A में एक ऐसा एलिमेंट मिलेगा क्या कि जिसका इमेज अंडर द T ये होना चाहिए। So therefore there exists, definitely there exists an element। तो A का एलिमेंट है मतलब वो एडिशन में होना चाहिए। देखिए इसको मैं ऐड कर लेता हूं, बिलोंग्स टू A, ये जो डोमेन है, such that the T of u1 plus u2 plus un is equal to n-tuple of u1, u2, u1, and therefore T is onto map। onto में हमेशा याद रखना होता है आपको कि गारंटी देना पड़ता है कि कोडोमेन का कोई भी एलिमेंट लेंगे हम, कोई, तो डोमेन में एक एलिमेंट एग्जिस्ट होना चाहिए जो T के अंदर जाकर वो एलिमेंट को इक्वेट करेगा। मतलब A में ऐसा एलिमेंट है ही नहीं जो इमेज देता नहीं है B के किसी एक एलिमेंट की, तो वो फंक्शन ऑन टू नहीं रहेगा। ऑन टू मतलब हर कोडोमेन का हर एलिमेंट को प्री इमेज डोमेन में रहना चाहिए। ये अगर होता है तो उसको हम ऑन टू बोलते हैं। तो ये ऑन टू हमने प्रूव करके बता दिया। तो therefore now this T is an isomorphism। सारी चीजें होने के बाद आइसोमॉर्फिज्म फ्रॉम इंटरनल डायरेक्शन जो हमने A से डिनोट किया था इनटू एक्सटर्नल डायरेक्शन B। Therefore A is isomorphic to B। That is, what is A? Therefore internal direction is isomorphic to external direction। And this is the end of this theorem। बहुत ही लंबा चला लेकिन डिटेल में हमको एक्सप्लेन करना था, इसलिए थोड़ा सा वीडियो बड़ा हो गया है। बट
try to understand, try to think, try to feel the beauty of abstract algebra. ओके, चलिए रुकते हैं यहाँ पर, तब तक के लिए बाय बाय।